In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, dear students, Assalamu alaikum. It's me, your English mentor, Faisal Shabir. Dear students, today the topic of our lecture is the types of pronouns. But before going to discuss today's lecture, I would like to let you know about that why English is so much important in our lives, why it is important for all of us to learn this language. So dear students, the answer is that the maximum of knowledge of this world is published in English nowadays. English is the international language, and definitely it is mandatory for all of us to learn this language because the way of communication of the maximum people is in English. So that's why we can say that the most people of this world speak English language. So that's why it is so much important for us, and we have to learn this language in a good way and in a fluent way. So this one is the information about the English language, and let me move towards the lecture of our today's session. So dear students, as I told you earlier, that today the topic of discussion is the types of pronouns. So dear students, the types of pronouns. So first of all, I would like to let you know about the pronouns. Pronouns are those words which we use in the place of nouns in order to avoid the repetition in the sentence. Types of pronouns. So basically there are 8 types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and reflexive pronouns. So there are 8 types of pronouns. So let me move towards the types of pronouns, and I will explain these types first, then I will give you the examples, and then finally we will use the examples of you can say the pronouns and sentences. So here we go. Personal pronouns. Personal pronouns are used as a substitute of the person's name. There are 2 kinds of pronouns: subjective and objective pronouns. Basically, the personal pronouns are those nouns which we use in the place of word, and it is used as a substitute. And examples of personal pronouns are I, we, you, they. There are many other types also. There are many examples too, but these are the common ones for understanding the basic level of the English language. First person pronoun is I, we, you, they. Second person pronoun is you, yours. And the third person pronoun is he, she, it. So dear students, these are the examples of personal pronouns. I have just named them because they're the subjective case. They have their own objective case too. So let me use these examples in the sentences. I have a sentence. They went to the store. This is a sentence in which we use a personal pronoun. In this sentence, the personal pronoun is they. They is the personal pronoun in this sentence. तो डियर स्टूडेंट्स, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमेशा कोई भी ऐसा नाउन जो कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ हो वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. इसकी एग्जांपल्स होती हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यू, योर्स. आगे इसकी फर्दर डिविजन्स होती हैं. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है आई, वी, यू, दे. जो सेकंड पर्सन होता है उसमें हम यू का यूज़ करते हैं, यू, योर्स का यूज़ करते हैं. और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, दैट इज ही, शी, इट. तो अभी कुछ सेंटेंसेस हैं इसमें डिस्कस करेंगे. हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है दे वेंट टू द स्टोर. इस सेंटेंस में जो दे है वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है. सेकेंड सेंटेंस इज आई डोंट वॉन्ट टू लिव. इस सेंटेंस में आई हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है. ही रन्स अ ग्रेट शॉप इन द टाउन. So in this sentence, he is the personal pronoun in this sentence. You cannot live. इस sentence में हमारे पास you जो है वो हमारे पास personal pronoun है. तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने first type discuss की है जो है हमारे पास pronouns की, जिसको है personal pronoun. अब next type हमारे पास जो आ रही है जिसको हम discuss करेंगे, which it is the possessive pronouns. So possessive pronouns show ownership and possessions in the sentence. So in the possessive pronouns, dear students, the main important thing that we have to keep in mind,
that possession and ownership. Actually, the nouns which reflect some ownership or a possession in the sentence is known as the possessive pronouns. प्यारे बच्चों, possessive pronouns का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी सेंटेंस में कोई पोजेशन या कोई मलकियत शो कर रहे हो, जिसमें हमें पता चल सके कि ये चीज जो है ये किसकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकी एग्जांपल्स हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। THEIR वाला देयर, ठीक है बेटा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली पोजेशन शो करवाते हैं, ये मलकियत शो करवाते हैं कि ये चीजें जो हैं ये किसकी हैं। तो इसको हम एग्जांपल में यूज करेंगे तो आपको इसकी ज्यादा अच्छी तरीके से इसको क्लैरिफाई कर सकोगे, इससे ज्यादा आइडेंटिफाई करोगे, आपको अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट माय बुक। अब इस सेंटेंस में जो माय है, इट इज शोइंग द पोजेशन। क्या ये मेरी बुक है या क्या वो मेरी बुक है? अब इस सेंटेंस में जो बुक है वो एक्चुअली मैं एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में पूछ रहा हूं। माय इज शोइंग द पोजेशन। नो, दैट इज हिज बुक। नहीं, वो उसकी बुक है। तो इस सेंटेंस में जो हिज है ये एक्चुअली मलकियत को जाहिर कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि नहीं ये बुक इसकी है। तो उसका नेम भी नहीं आया। नेम नहीं आने की वजह यह कि हम प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोनाउंस में हम कौन सी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस को। तो इसमें हमने अभी यूज किया हिज, यूज किया माय, यूज किया हर, आवर, योर, माइन, माय। These are all the examples of the possessive pronouns. Okay, that's itself. अब इसमें its जो है बेसिकली ये हमारे पास possessive pronouns है। I would like to see their bookshelves. अब यहाँ पे THEIR वाला their हमारे पास possessive pronouns है कि मैं उसकी बुक शेल्व्स को देखना चाहूंगा। उसकी is the possessive pronoun in this sentence. So dear students, this is all about the possessive pronouns. We will move towards the next type of the pronouns, which is the indefinite pronouns. As its names reflects, indefinite means not a particular or a specific thing. For example, indefinite pronouns do not point to a particular or specific thing. ये किसी भी एक खास चीज के ऊपर खास सब्जेक्ट नाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते। ये एक जनरल सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, जनरल स्टेटमेंट देते हैं। We use them when an object doesn't need to specifically identified subject. As such, it can remain indefinite. तो इसको इसी वर्ड्स में हम कहेंगे कि indefinite pronouns are those pronouns in which we do not identify some specific or a particular thing. तो उसको हम आइडेंटिफाई प्रोनाउंस कहेंगे, क्योंकि इसमें हम किसी एक चीज के ऊपर किसी एक बंदे को, किसी एक शख्स को, किसी एक चीज को उसको हम उसका नाम नहीं ले रहे होते या उसको पॉइंट नहीं किया होता, जर्नल एक कह रहे होते हैं जो कि सबको कहा जा रहा होता है। जब हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। तो एग्जांपल्स आर फ्यू, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समवन। So these are the examples of the indefinite pronouns. तो अब अगर इनमें हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास अगर देना चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ कि everybody stand up right now. हर कोई खड़ा हो जाए इसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं एक आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने अब किसी एक बंदे को स्पेसिफाई नहीं किया, पर्टिकुलर नहीं किया। अब सेकेंड सेंटेंस है nobody is in the room. अब इसमें nobody को मैंने किसी एक खास को आइडेंटिफाई नहीं किया, एक जनरल स्टेटमेंट दी कि कमरे में कोई भी नहीं है। सेम इज द केस, अदर एग्जांपल्स आर I don't have any paper napkins. Can you bring some? तो इसमें मैं फिर एक चीज बोला, some is the indefinite pronouns in this sentence. So dear students, this is all about the indefinite pronouns. Indefinite pronouns वो होते हैं जिसको हम किसी खास एक चीज को स्पेसिफाई नहीं करते, एक जनरल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं
कि few people are watching televisions at this time, ठीक है। तो कुछ लोग अभी टीवी देख रहे हैं, अब कुछ में कौन कौन है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो यहाँ पर few जो है हमारे पास वो indefinite pronouns हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा everyone है, everyone is sleeping। अब यहाँ पे सब सो रहे हैं तो everyone जो है हमारे पास indefinite pronouns हैं। इस तरह all है, all the students are present in the class, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं। अब इसमें जो all है ये हमारे पास indefinite pronouns है। मैंने किसी एक खास स्टूडेंट की बात नहीं की, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, एक जनरल स्टेटमेंट क्रिएट की है कि सब, कोई भी नहीं, किसी एक चीज को मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो हमारे पास indefinite pronouns होंगे। So dear students, we will move towards the next type, which is the relative pronouns. The relative pronouns, it is a very interesting type of pronouns, as its name shows a relative. Relative means showing relations. This type of pronouns actually show the relationship between the two things. For example, who, whom, which, whichever, that. These are the basically commonly using relative pronouns in the sentence of English grammar. तो relative pronouns कौन कौन से होते हैं, ये अगर हम इसको, ये relation show करते हैं बेटा। Relative pronouns are used to connect a clause or a phrase to a noun or a pronoun. Noun या pronoun के साथ किसी clause को add करने के लिए, उसकी additional information को देने के लिए we use relative pronouns. तो अगर हमें किसी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो हम सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और फिर आगे हम उसकी फर्दर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउंस। नो आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। द ड्राइवर हु ran the stop signs was careless। अब इस सेंटेंस में द ड्राइवर हु ran the stop sign was careless। अब एक ऐसा ड्राइवर जिसने रेड सिग्नल को तोड़ा या रेड सिग्नल को ब्रेक किया वो केयरलेस था। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं जो ड्राइवर है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बगैर नहीं दे पाऊंगा। तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू यूज रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। सो इस सेंटेंस में जो हमारे पास हु है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वांट। तो अब इसमें जो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि अब इसमें देखेंगे आई डोंट नो। अब यहाँ पे आगे उसने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो विच है हमारे पास, इट इज द यू कैन से द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। टेक विच एवर वंस यू वांट, जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। तो इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नो नॉट दैट वन, नहीं वो वाला नहीं, यहाँ पे दैट जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। सो these are the examples of the relative pronouns। को मैं थोड़ा रिपीट कर दूं बच्चों कि relative pronouns वो pronouns होते हैं जो कि रिलेशन को शो करते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ, जो क्लॉजेज या फ्रेजेस को, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसको ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस and I hope that you can understand it. The next type of pronoun is the intensive or emphatic pronouns. Now, this is also an important one, intensive and or emphatic pronouns. Intensive pronouns emphasize or intensify the nouns and the pronouns in the sentence. Typically, we find them right after the nouns. They are intensifying. These pronouns typically end in self or selves. So basically intensive pronouns are those pronouns which emphasize the nouns or the pronouns in the sentence. Actually ये वो होते हैं ऐसे nouns pronouns होते हैं जो कि सेंटेंस में एक प्रेशराइज कर रहे होते हैं या एक जोर दे रहे होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के ऊपर या प्रोनाउंस के ऊपर जोर दे रहे हों, अपनी बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हों, उनको हम इंटेंसिफाइंग या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये इनके ना लगने से सेंटेंस की नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारे पास एक और टाइप आ रही है, वो भी उसकी और इसकी एग्जांपल सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस ये है
कि इसके सेंटेंस में ना लगने से सेंटेंस की नेचर पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट रहता है। लेकिन अब अगर यूज़ कर लेंगे तो हम उनको इंटेंसिफाइंग या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। तो इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो है माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, देमसेल्व्स है, आवर सेल्व्स है, योर सेल्व्स है। These are all examples of the intensive pronouns. Now I'm going to use these examples in the sentence. I myself like to travel. अब इस सेंटेंस में जो एग्जाम्पल आ रही है, एम्फसाइज कर रहा हूँ मैं अपने आप को, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवलिंग जो है अब मैं उसको पसंद करता हूँ। He himself is his worst critic. वो खुद से ही बहुत बड़ा एक नाकिद है, तनकीद करने वाला अपने ऊपर। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि एम्फसाइज कर रहा है। Himself actually reflecting back to the noun. She approved the marriage herself. So in this sentence, the herself is the इंटेंसिफाइंग प्रोनाउन, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को एक एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है उसके ऊपर। Who went to hear W.B. Yeats himself speak. हम जो है W.B. Yeats को सुनने गए, खुद से सुनने गए। तो इसमें जो है फिर दोबारा से एक इंटेंसिफाई कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है नाउन को, W.B. Yeats को इस सेंटेंस में। तो ये हमारे पास एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस होगा। तो प्यारे बच्चों, आसान वर्ड्स में आपको समझा दूं कि इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं, उसको जोर देते हैं, वो हमारे पास इंटेंसिफाइंग प्रोनाउंस होते हैं। इनके सेंटेंस में लगने या लगने से खास सेंटेंस की नेचर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मोस्टली तब यूज करते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन कोई डिटर्मिनेशन शो करना चाह रहा हो। ठीक है, I myself take the revenge of this killing. ठीक है, अब ये जो है इसमें सेंटेंस जो myself एक्चुअली जो है मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ इस नाउन के ऊपर, इस प्रोनाउन के ऊपर, सॉरी। तो ये हमारे पास इंटेंसिफाइंग प्रोनाउंस होगा। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ नाउन्स। तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द डेमोन्स्ट्रेटिंग या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Demonstrative pronouns take the place of a noun that's already been mentioned. They can be singular or plural. There are 5 of them. So for जो 5 हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ. These, those, this, that, and such. So demonstrative pronouns वो होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस जो है इन कॉम्प्लेक्स और you can say compound sentences में ऑलरेडी एक मेंशन किया जाता है प्रोनाउन, उसके ऊपर उसको आगे लेके कंटिन्यू कर रहा होता है, उसको चल रहा होता है और उसी के आगे बिहाफ पे अपनी मीनिंग्स को कन्वे करते हैं. दे कैन बी सिंगुलर और द यू कैन से द प्लूरल. सो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं दीज, दोस, दिस, दैट एंड सच. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को समझने के लिए प्यारे बच्चों एक और चीज़ भी है कि इसमें आप किसी चीज़ के ऊपर या पॉइंट करते हो, इशारा करते हो, तो आप मोस्टली जो है demonstrative pronouns use करते हो. Demonstrative, we can use demonstrative pronouns by identifying or pointing something. जब हम किसी चीज़ के ऊपर इशारा करते हैं और उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं तो we can use the demonstrative pronoun. For example, this is a car. So in this sentence, this is the demonstrative pronoun in this sentence. So there are, I hope that you can understand the definition of demonstrative pronouns. I would like to give you the examples of the demonstrative pronouns, which are, these are ugly flowers. इस सेंटेंस में जो these है वो हमारे पास जो है हमारे पास you can say that demonstrative pronouns है. Next हमारे पास है जी those are lovely flowers. अब इसमें जो those है actually reflecting or pointing the us memorizing us the you can say that the demonstrative pronouns. Don't drink this. अब इसमें जो this actually it is once again the demonstrative pronouns. Such was his understanding. वो उसकी सोच थी, वो उसकी जो भी थी उसकी समझ थी, whatever this है. तो इसमें हम जो such है SUCH, such जो है ये हमारे पास demonstrative pronouns आएगा. So dear students, demonstrative pronouns are those pronouns which we use actually in the sentence in order to point something in the sentence. It may be singular or the plurals,
and it mostly comes in the start of the sentence, and mostly we use them by if we have to identify or point something, and we use this type of pronouns, which is known as the demonstrative pronouns. So the next type of pronoun is the interrogative or interrogative pronouns. So interrogative pronouns, many of the students you already you can say they're familiar with this type of nouns, because it is mostly used by all of us, especially in academic session, you can say that. So interrogative pronouns do just what they say. They work in the sentence that are posing a question. So interrogative pronouns are those pronouns in which we identify and in which we have to ask a question. ऐसे pronoun जिसमें हमें कोई ना कोई question पूछना हो, तो हम इन pronouns की मदद से जो है वो question पूछ सकते हैं. तो these interrogative pronouns, तो इनकी example कौन कौन सी होती हैं बेटा? Who, where, which, when, whomever, whatever, whichever, these are all the pronouns which we use to ask a question is known as interrogative pronouns. तो प्यारे बच्चों, वो वर्ड्स जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. तो लेट्स सी इसकी एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट. इस सेंटेंस में हु जो है हमारे पास वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. सेकेंड है व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी. तो व्हाट जो है इस सेंटेंस में हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. सेकेंड, थर्ड एग्जांपल है व्हिच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर. इन दिस सेंटेंस फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन को मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को आस्क करने के लिए हम जो एक मतलब ओपिनियन मांगते हैं, तो वो हमारे पास जो वर्ड विच है एक्चुअली वो हमें बताता है कि कौन सा, मतलब एक ओपिनियन हमें दे रहा होता है. तो विच जो है इस सेंटेंस में हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. लास्ट वन इज द व्हाट एवर डू यू मीन. तुम्हारा जो भी कोई मकसद है, जो भी तुम्हारा मतलब है, व्हाट एवर यू मीन, व्हाट एवर जो है वो एक्चुअली हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं इन सेंटेंस में. तो प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्वेश्चन रेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें व्हाट है, वेयर है, विच है, व्हेन है. तो दीज आर ऑल नोन एज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. तो इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास टाइप है प्रोनाउंस की, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस एंड यस इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग. तो इसको आपने फुल कंसंट्रेशन से सुनना है, ताकि आपको इस टाइप का और जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इंटेंसिफाइंग प्रोनाउंस, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्लियर हो सके बेटा. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू इंटेंसिव प्रोनाउंस. अब मैंने सिमिलर कहा है, अब डिफरेंस कहाँ पे है वो भी आप देखिएगा, सुनिएगा. Reflexive pronouns are similar to the intensive pronouns. The difference between the two is that intensive pronouns are not essential to a sentence. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि intensive pronouns जो हैं ये actually it does not affect the nature of the sentence. It is not mandatory for the completion of the sentence. लेकिन मतलब इंटेंसिव प्रोनाउंस की मैं स्टेटमेंट का मतलब बता दूं कि जो इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं ये अगर स्टेटमेंट में नहीं भी लगे हुए, सेंटेंस में यूज नहीं हो रहे, फिर भी वो अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है. उसके बगैर आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली जो है सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. लेकिन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिंटैक्स स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस. So reflexive pronouns are also they are used when the subject and the object of the sentence refer to the same person or the things. Yeah, the reflexive pronouns actually refer back to the sentence. अब जो भी कुछ कहा जा रहा होगा actually वो direct reflect होके जो है subject of the sentence के reflect कर रहा होगा. So this is the second identification of the reflexive pronouns in the sentence. So these pronouns end in self and selves also as intensive pronouns are, but the difference is that actually it is necessary to maintain the sentence structure of the sentence. और जो intensive pronoun है उनका जो है जो nature या syntax पे खास फर्क नहीं पड़ता.
तो इसकी एग्जांपल्स बेटा डिस्कस करते हैं। जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको और एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस को आपस में डिफरेंशिएट करना है। एग्जांपल्स की योरसेल्फ है, हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, इटसेल्फ है, देयरसेल्व्स है और themselves है। These are all examples of the you can say that the reflexive pronouns. Now we'll move towards the examples. I told myself not to spend all money on the new shoes. This one is an important example for you to understand. I told myself not to spend all money on shoes. तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं माई सेल्फ को ओमिट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, नहीं लिखता फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस में कुछ मिसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड डैश नॉट टू स्पेंड ऑल द मनी ऑन न्यू शूज। तो जब तक मैंने एक एक्चुअली इस प्रोनाउन को यूज़ नहीं किया तो वहीं पे मतलब सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और सेंटेंस जो है वो डेफिनेटली ठीक नहीं होगा। तो यही से आपको पता लग जाना चाहिए कि कोई किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, कोई भी सेल्फ यूज हो रहा है तो आपने देखना है कि ईदर इट इज मैंडेटरी और नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड द सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंस और नॉट। If that particular pronoun is important and mandatory to maintain the position or the structure or nature of the sentence, then it should be the reflexive pronouns. अगर वो ज़रूरी है उस सेंटेंस में, अगर आप उसको हटा के देखें तो जो एक्चुअली क्या लेंगे बैलेंस जो है सेंटेंस का ख़राब हो रहा है तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर वो सिंपल ये रेफर किया जा रहा है कि उसके ऊपर सिर्फ वहाँ पे जो वो नाउन है वो एम्फेसाइज या जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर वो आपके पास इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। इसको मैं मजीद आसान वर्ड्स में कुछ यूँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पर जोर देने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। दो बातें हैं, बात पे जोर ना भी दिया जाए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बात मुकम्मल ही नहीं हो रही, कंप्लीट ही नहीं हो रही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बेटा this is the main difference between these two types of the pronouns, intensive pronouns and reflexive pronouns. So reflexive pronouns are those pronouns which actually you can say that which actually refer back to the subject of the sentence, and it is mandatory to maintain the balance of the sentence. Balance जो है sentence का ये एक्चुअली मेंटेन करते हैं जब भी इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये ना कहेंगे आप अगर किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ ही ना हो और फिर आप उसमें कहेंगे सर इसमें तो देखिए मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बगैर ही बैलेंस को मेंटेन कर दिया, तो नहीं। जिस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होना हो और फिर उस यूज़ के अकॉर्डिंगली हम यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सेंटेंस एरर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो एक्चुअली रेफर बैक टू द सब्जेक्ट होते हैं, रेफर बैक करते हैं सेंटेंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, और अपना जो मीनिंग कन्वे करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं। यू आर गोइंग टू हैव अ ड्राइव योरसेल्फ टू द रेस्टोरेंट टुडे। तो इन दिस सेंटेंस जो योरसेल्फ है इज एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वी गिव आवरसेल्व्स प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। अब मैं यहाँ पर अगर इस और सेल्व्स को रिमूव कर दूँ तो वी गिव प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, समझ में नहीं आ रहा भाई किसको इतना टाइम दिया, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर और शब्द लगाएंगे कि हमने खुद को काफ़ी वक्त दिया तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा एक्चुअली कि नेक्स्ट बात हम क्या करना चाह रहे हैं। इन द लास्ट एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दे बॉट देमसेल्व्स अ न्यू कार। इन दिस सेंटेंस देमसेल्व्स कि उन्होंने खुद से वो कार खरीदी। दे बॉट अ कार, उन्होंने कार खरीदी, लेकिन अगर इसको देमसेल्व्स लगाएंगे कि इट मीन्स कि उन्होंने खुद से वो कार खरीदी, so in this sentence themselves is actually refer back to the subject of that particular sentence, so we can say that it is again an example of reflexive pronouns. So dear students, reflexive pronouns वो pronouns होते हैं जो कि refer back to the subject होते हैं, subject और subject के ऊपर meaning जो है वो back refer करते हैं, और ये हमारे पास reflexive pronoun होते हैं, और इनके बगैर सेंटेंस जो है अपना पूरा मीनिंग जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाता, क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर
जो आपके पास नाउन है या प्रोनाउन है उसके ऊपर जोर जो है देने के लिए हम यूज करते हैं. So, dear students, so far we have discussed all the kinds and types of the pronouns, which were eight types of pronouns. सबसे पहले हमने पर्सन प्रोनाउन डिस्कस किया, फिर पोजेसिव प्रोनाउन डिस्कस किया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस फिर डिस्कस किया. इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद हमने इंटेंसिफाइंग प्रोनाउंस डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो डिस्कस किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया. तो now we would like to give you the summary of today's lecture. Today we have discussed the types of pronouns. There are basically 8 types of pronouns. Number 1 is the personal pronouns. Personal pronouns are those pronouns which are used instead of the nouns, and they are basically they are used as a substitute of the noun in the sentence. So the examples of the personal pronouns are I, we, you, they, he, she, it. These are all the examples of the personal pronouns. The second type is the possessive pronouns. Possessive pronouns are those pronouns which actually shows the possessions, the ownership of the, you can say of anything or any place or any subject. You can say that in which we reflect, in which we discuss the possession of something. That particular noun actually discuss those type of nouns, possessive pronouns. The third one is the indefinite pronouns. Indefinite pronouns are those types of the pronouns which do not specify or which do not actually point to some specific or the particular things or the particular, you can say that object. It is used as a general. The example of the indefinite pronoun is all, some, everybody, someone, nobody. So these are all the example of the indefinite pronouns. The next one is the relative pronouns. Relative pronouns are those pronouns which actually show the relationship, and we mostly use relative pronouns in order to give the additional information about the subject or noun of the pronouns. So their examples are who, which, that. These are all the example of the relative pronouns. Next one is the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are those type of the pronouns which actually we use to demonstrate things. For example, we used to point the things basically. So if we have to point out some specific thing, or if we have to point out or identify some specific thing, we use the demonstrative pronouns in the sentences actually. And in demonstrative pronouns, the meanings in the sense and the nature has already been discussed in that particular sentence. So this is the demonstrative pronouns. Its example is this, that, these, those, such. The next one is the interrogative pronouns. The interrogative pronouns are those types of pronouns in which we ask questions. The question asking words are known as the interrogative pronouns. Their examples are who, where, which, when, why. These are all the interrogative pronouns. And you can say that the most important one is the intensifying pronouns. Intensifying pronouns are those type of the pronouns which actually shows the emphasis, which actually emphasize, you can say that, which actually emphasize the noun or the pronoun in the sentence. So such type of the noun as the intensive pronouns. And then the last but not least, the reflexive pronouns. Reflexive pronouns are those type, that particular type of the nouns which actually you can say that refer back to the subject of the sentence. Actually, it is mandatory to maintain the balance of the sentence. So this is known as the reflexive pronouns. The examples of reflexive pronouns and the intensifying pronouns are the same. The examples are yourself, ourselves, themselves, and these all selves are the example of the intensifying pronouns as well as the reflexive pronouns. The next topic is verb and its types. So dear fellows, जो हमारे पास verb है, आज हम उसको और उसकी types को discuss करेंगे. तो first of all, verb. The verb is the word which shows an action in a sentence is known as a verb. तो कोई भी ऐसा word जो कि action show करता है किसी भी sentence में, वो हमारे पास verb कहलाता है. तो बेटा, there are basically 8 types of verbs which we will discuss in this lecture. So the types of verbs are, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे action verb, second one is transitive, third one is intransitive, fourth one is regular, fifth one is irregular,
इरेगुलर के बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट को, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, और फिर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हमारे पास टाइप्स हैं वर्ब्स की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। वर्ब की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो आ रही है एक्शन वर्ब। तो जो डेफिनेशन है हमने वर्ब की अभी शुरू में इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की है, वही डेफिनेशन एक्चुअली द एक्शन वर्ब की है। तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली इट शोज व्हाट एक्शन डज अ सब्जेक्ट परफॉर्म, कि वो जो एक्शन कोई भी सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास एक्शन वर्ब है। जिस तरह कि इसकी जो टाइप का नेम ही बता रहा है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब मीन्स द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज नोन एज action verb. So basically this is the definition of the action verb, and now I'm going to give you the examples of this. So John played cricket. तो ये हमारे पास छोटा सा सेंटेंस है, John played cricket. तो John subject हो गया, played verb हो गया, cricket object हो गया। तो कौन से इन तीनों वर्ड्स में, मैं वर्ड्स कह लेता हूँ, इन तीनों वर्ड्स में, इन थ्री वर्ड्स में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को शो कर रहा है? जॉन एक्शन शो कर रहा है? नो। क्रिकेट एक्शन शो कर रहा है? नहीं। प्लेड ये एक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ये एक्शन शो कर रहा है, इस वर्ड में किसी काम का करना जाहिर हो रहा है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अली बेक्ड केक फॉर द बर्थडे पार्टी। तो अली बेक्ड केक, अली ने केक बनाया। बेकिंग, बेक्ड इज द verb in this sentence. Next one is your brother is tearing my notes. तुम्हारा भाई मेरे नोट्स फाड़ रहा है। तो एक्चुअली तुम्हारा भाई नो एक्शन, नोट्स नो एक्शन, बट द tearing फाड़ना इज द एक्शन। तो ये हमारे पास अगेन एक्शन वर्ब होगा, और इस सेंटेंस में हमारे पास जो है टीयरिंग, वो हमारे पास एक्शन होगा। नेक्स्ट है सिंपल, आई रोट अ लेटर टू माई कजन। आई नहीं शो कर रहा, लेटर कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, बट राइट या रोट इट इज एक्चुअली शोइंग द एक्शन। तो ऐसे वर्ब जो कि एक्शन शो कर रहे हो बेटा, वो हमारे पास एक्शन वर्ब्स होते हैं। और एक और इधर से मैं आपको चीज़ बता दूं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस। और यही वर्ड जो कि एक्शन शो कर रहा है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, एक्चुअली हमें टेंस के बारे में भी बताता है। ये काम कब हुआ, प्रेजेंट। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। मैंने कल लेक्चर दिया, वो पास था। इंशाल्लाह मैं कल दोबारा लेक्चर दूंगा, वो फ्यूचर है। तो जो मेरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, उसी से ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस टेंस की कौन से टाइम में बात कर। तो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट टाइप विच इज एन एक्शन वर्ब। सेकेंड टाइप है हमारे पास बेटा ट्रांजिटिव वर्ब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which have an object to receive the action. It requires an object in order to be grammatical. तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में, घुमा फिरा के नहीं, सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स सेंस क्लियर। कि ऐसे वर्ब्स जो कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी सेंस को, अपनी कहने के मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है बेटा, ये बाज़ ये सेकंड टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, और इम्पॉर्टेंट है। अभी इसको आपने समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट। इसका ताल्लुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग पूरा समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, those verbs which needs an object to complete its meaning is known as transitive verb. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सेंटेंस आपके सामने बोलूँ, तो क्या आप अभी उसको, उसका मीनिंग जो है आपका बिल्कुल विविड मीनिंग क्लियर आपकी माइंड में आएगा या नहीं? द कैट ब्रोक, बिल्ली ने तोड़ा।
अब आप कहेंगे सर आगे भी तो कुछ बोले, बिल्ली ने क्या तोड़ा? द कैट ब्रोक द मिरर. नो, द सेंटेंस एंड सेंस बोथ क्लियर कि बिल्ली ने शीशा तोड़ दिया, बिल्ली ने शीशा तोड़ा. द कैट ब्रोक द मिरर. तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ऐसे वर्ब्स जिसको अपना एक्शन कंप्लीट करवाने के लिए किसी वर्ब की जरूरत पड़े तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है ही मूव द चेयर. अगर मैं चेयर को थोड़ी देर के लिए ओमिट कर दूं, हटा दूं, सिंपल आपको एग्जाम्पल दे दूं, he moved. What does it means? Does it inculcate a proper meaning to us? No. ये हमें हमारे पास प्रॉपर मीनिंग इंकलकेट नहीं कर रहा. हमें इसके लिए चाहिए होगा ऑब्जेक्ट जिससे हमें पता चले कि उसने किस चीज को मोड़ा, किस चीज को लेफ्ट राइट किया, कुछ तो होगा. He moved the car, he moved the steering, he moved the chair. जब तक हम उसके साथ एक खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करेंगे हमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा. तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिटिव. तो थर्ड एग्जांपल है शी बॉट. उसने खरीदी. क्या खरीदी भाई? जब तक मैं इसको मैं अपना ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा आपको कुछ मैं अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाऊंगा. तो शी बॉट सम न्यू बुक्स, शी बॉट फ्लावर्स, शी बॉट डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर आके समझनी चाहिए कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसा कि हमने पिछली टाइम में डिस्कस किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपनी सेंस को इनकलकेट करवाने के लिए. तो ठीक इसी तरीके से these are the types of action, these are the type of the verbs which do not need an object to complete its meaning, to inculcate its meaning. इसको समझाने के लिए अपने मीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. तो डेफिनेशन में आपको एक दफ़ा मतलब और भी बता रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ कंप्लीमेंट टू रिसीव एन एक्शन. सो दिस इज द डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन में हमें बहुत ही कंसाइज तरीके से, प्रिसाइज तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं बेटा. तो इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल है फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग एट दिस मोमेंट. मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस मोमेंट. अब एट दिस मोमेंट इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं ये लगाऊं. सिंपल अगर मैं कह दूं कि आई एम स्टडीइंग तो आपको समझ आ रही होगी कि यस अभी ये शख्स, अभी ये बंदा पढ़ाई कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट हिज फादर वाज ड्राइविंग. उसके पापा गाड़ी चला रहे थे. हिज फादर वाज ड्राइविंग. अब ड्राइविंग में बेसिकली आप ये देख लें कि इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा और ना ऑब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि हिज फादर वाज ड्राइविंग. डेफिनेटली हिज फादर वाज ड्राइविंग अ कार, हिज फादर वाज ड्राइविंग अ जीप, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट इज. लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाऊंगा तो फिर भी अपना मीनिंग क्लियर करेगा. सेकेंड वन इज सारा इज कुकिंग. अब वो क्या बना रही है, वो बिरयानी बना रही है, वो पुलाव बना रही है, वो जो भी बना रही है मैं नहीं बताता, लेकिन सिर्फ इतना ही बता देता हूँ आपको कि सारा इज कुकिंग. तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कुछ ना कुछ तो बना रही है, कुछ ना कुछ तो पका रही है. तो सेम इज द केस द चाइल्ड इज स्नीजिंग. मीनिंग इज क्लियर. वी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. हमें पता लग गया कि इस सेंटेंस में हमें ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो छींक मार रहा है. तो बेटा वो वर्ड्स, वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपने सेंटेंस में अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. So dear students, those verbs we do not need an object to complete its meaning is known as intransitive verbs. So we will move towards the next type, which is the finite verb. It is very important with respect to examination point of view. ये थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली आपके पास टाइप्स है उसको भी आप इजीली समझ लेंगे. फाइनाइट वर्ब्स.
finite verbs are those verbs that have a definite relation with the subject and a noun in the sentence. These verbs are usually the main verb of a sentence and can be changed according to the noun. Finite verbs. Finite verbs हमारे पास वो verbs होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट या नाउन में होता है किसी भी सेंटेंस में, और ये सब्जेक्ट और नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली या नाउन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए तो वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होगा. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि फाइनाइट वर्ब को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये टेंस कौन सी फॉर्म है. थ्रू फाइनाइट वर्ब we can make an idea which type of tense is belong to that particular sentence. तो बेटा ये हमारे पास अभी एक इम्पॉर्टेंट की आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा. अगर आपके पास कोई ऐसी MCQs में ऑप्शन पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट है और उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ब है, ये कौन से जो है कौन सी टाइप है वर्ब की, ये एक्शन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इरेगुलर, जो भी आपसे पूछें. तो अगर आपसे फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंगली पूछा जाए या अगर आपको वो वर्ब फाइनाइट लगे तो आपने एकदम उसको देखना है और ये देखना है कि क्या ये वर्ब के अकॉर्डिंगली ये जो नाउन है ये वर्ब नाउन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है या नहीं, पहली टाइप. और दूसरी इसको आप जो है आप इसको अपने माइंड में ले सकते हैं कि अगर ये इसकी जो फॉर्म है इसको चेंज करने से टेंस चेंज हो रहा है तो आपको डेफिनेटली अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये दोनों चीज़ें कर रहा है तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब. Examples of finite verbs are dog barks in the park. अब यहाँ पे बेटा हमारे पास सब्जेक्ट है dog और उसके साथ हमने verb लगाया है barks. In the park हमारे पास सब्जेक्ट आ गया. अब यहाँ पर देखेंगे dog हमारे पास सिंगुलर है और उसके साथ हमने verb लगा दी है barks और ऑब्जेक्ट है हमारे पास in the park. In the park को भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और ज़रा तवज्जो दीजिए इस dog को और barks को. dog हमारे पास सिंगुलर है और हमारे पास जो verb है वो भी हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं barks. सेंटेंस टेंस है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. अब यहाँ पर अगर एक डॉग है तो हमने वर्ब के साथ एस और एस की एडिशन कर दी है. अगर यहीं पे ये डॉग के बजाय डॉग्स हो जाए, हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंगली प्लूरल वर्ब को ही चूज़ करेंगे. तो इट मीन्स ये दोनों शराइत पे जो उन दोनों शराइत पे ये पूरा उतरता है. सबसे पहली शर्त क्या है, ये सब्जेक्ट और नाउन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, सबसे पहली शर्त है. और दूसरा ये हमें टेंस चेंज कर रहे हैं, अगर इसका हम टेंस चेंज करें तो उसमें भी यही वर्ड को चेंज करें तो हमारे पास टेंस भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल डॉग्स बार्क इन द पार्क हो तो मैं इसको करीब करूँ डॉग्स बार्क्ड इन द पार्क तो ये हमारे पास पास्ट टेंस में चला जाएगा. तो बेटा दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वर्ब. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है फहद सेड दैट ही एंजॉयड द पार्टी. इन दोनों वर्ब्स में हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है वर्ब की, और ये वर्ब जो है हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं. ये हमारे पास वर्ब्स हैं. माई ब्रदर प्लेज द पियानो तो वही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सिंगुलर वर्ब लगाया. टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है. तो चेंज हो सकता है अगर मैं सब्जेक्ट को ब्रदर के बजाय ब्रदर्स कर दूँ, अपना सब्जेक्ट जो है वो मैं प्लूरल ले जाऊँ तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. तो फाइनाइट वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं. तो दिस इज द मेन की टू अंडरस्टैंड द फाइनाइट वर्ब, दैट फाइनाइट वर्ब हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द noun or a subject in the sentence. So dear students, it is important to let you know that the only key to understand this finite verb is that you just go around and check the verb. If the verb has the tendency to change according to the subject, then it will be definitely a finite verb. This is the finite verb. I hope that you can understand. अब नेक्स्ट जब हम इसकी टाइप के चलेंगे इनफाइनाइट वर्ब की तरफ तो मैं आपको दोनों एक दफ़ा दोबारा कंपैरिजन भी करवा दूंगा किस तरीके से फाइनाइट वर्ब्स कौन से होती हैं और इनफाइनाइट वर्ब्स कौन से होती हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स की है. These verbs cannot be the main verb of a sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject. सबसे पहली बात तो इसमें जो डेफिनेशन में की गई है कि वो मेन वर्ब कभी भी सेंटेंस में नहीं होते. और दूसरी बात
वो जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, सब्जेक्ट जो डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उससे उसका भी कोई लेना देना है। तो तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इनफाइनाइट वर्ब के चेंज होने से सेंटेंस की टेंस चेंज नहीं होता। दे डू नॉट, और एक और बात, दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, एनी मूड और एनी जेंडर। ये इन तीनों चीज़ों पे किसी किस्म का असर नहीं डालते, इनकी नेचर पे कोई फर्क, जो कोई असर नहीं पड़ता। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनके चेंज होने से सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो ये चेंज नहीं होते, और इससे हम टेंस का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये हमारे पास नॉन फाइनाइट है। इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, आई विल कंटिन्यू माई वर्क हार्ड। अब कंटिन्यू इस सेंटेंस में है तो वर्ब, बट इट इज नॉट इनकलकेटिंग अस द टेंस ऑफ द सेंटेंस। Second thing is that it does not change according to the subject. So in this example, we can say that continue is the infinite verbs. We like camping in the woods. We like camping. अब like भी और camping भी दो हमारे पास verbs हैं, लेकिन हमारे पास जो camping है एक्चुअली ये हमारे पास जो verb है ये infinite है। इसमें हमें थोड़ा सा एक शार्प माइंड से सोचना पड़ेगा कि जो कैंपिंग है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं वही की बजाय ही लगा देता हूँ, ही लाइक्स कैंपिंग। मैंने पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया लेकिन वर्ब कैंपिंग चेंज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट के साथ चेंज ना हो वो वर्ब हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। आई हैव अनदर एग्जांपल फॉर यू। एग्जांपल हमारे पास है the man runs to the store to get a gallon of milk. The man runs to the store to get a gallon of a milk. इस सेंटेंस में हमारे पास बेटा दो फिर से वर्ब्स आ रहे हैं। सबसे पहले the man runs to the store। अब अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस के ऊपर ही गौर कर लें तो man सिंगुलर है, runs to the store, runs हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब है, s की एडिशन कर ली क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर और सेकेंड हमारे पास जो वर्ब है टू गेट अ गैलन ऑफ अ मिल्क, यहाँ पे टू गेट हमारे पास इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, ये भी वर्ब है लेकिन इसका सब्जेक्ट के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा ताकि नेक्स्ट सेंटेंस में मैं इसका सब्जेक्ट चेंज करने जा रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा। द मैन रन्स टू द स्टोर टू गेट अ गैलन ऑफ मिल्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा हूँ, The men run to the store to get a gallon of milk. पहले मैंने man कहा, फिर मैंने men कहा, पहले मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया तो वर्ब सिंगुलर था runs। अब मैंने men कर दिया, प्लूरल सब्जेक्ट कर दिया तो मैंने वर्ब भी प्लूरल कर दिया run। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब कौन है और फाइनाइट वर्ब। हमारे पास दोनों में टू गेट और टू गेट दोनों सेंटेंसेस में सेम रहा, हालांकि मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, लेकिन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहा। अगर सिंगल मैन था तो हमने वर्ब यूज़ किया था रन्स। जब मैंने आदमी लगा दी, ज़्यादा आदमी लगा दिए, मैन लगा दिया तो हमारे पास वर्ब रन बन गया। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होगा, और ये मेन वर्ब्स ही होते हैं ज़्यादातर। और अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहे तो वो हमारे पास सपोर्टिंग वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज रेगुलर वर्ब। A verb that follows the standard patterns in its inflection, it follows the regular pattern of verbs, is known as regular verb. Regular verb is the easiest type of the forms of the verbs. ये सबसे आसान, इसको समझना सबसे आसान है। वो क्यों? इसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डी और ईडी के एडिशन के साथ चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी की एडिशन करनी पड़ती है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। So dear students, those verbs in which we use D or AD as an addition in order to make them past form are known as the regular verbs. तो regular verbs की definition आपको बता दी, अब इसको मैं डिस्कस करूँगा एक एग्जाम्पल में।
You will learn verbs in English class. Have you already learned verbs? एक सेंटेंस में मैं learn कर रहा हूँ, दूसरे सेंटेंस में मैं learned बोल रहा हूँ, ed की एडिशन कर रहा हूँ, तो verb वही है बेटा, लेकिन एक में मैं present डिस्कस कर रहा हूँ, एक में मैं future डिस्कस कर रहा हूँ. I learned English from my teacher. अब इसमें मैं learn कर रहा हूँ. अब सेकेंड फॉर्म में जब इसको लगूंगा I learned English from my teacher, तो यहाँ पर ed की एडिशन के साथ मैं अपनी जो है उसको पास्ट फॉर्म में. सो डिफरेंट, आप इसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, ask your mother if she needs any help. इसमें ask है, हमारे पास वर्ब आ रहा है, रेगुलर वर्ब आ रहा है ask, और हम इसको जब यूज करेंगे ed के एडिशन के साथ, he asked his mother if she needed any help, तो अब इसमें ed की एडिशन आ, तो सेम इज द केस. ये हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाएगी? रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डी या ed की एडिशन करते हैं और हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है. अगर हम डी या ed की एडिशन को ख़त्म करते हैं, ओमिट करते हैं, तो पास्ट से के प्रेजेंट में जाती है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, डी या ed की एडिशन जिस भी वर्ब में हो जाए वो हमारे पास रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कहलाती है. इसी के साथ ऑपोजिट जो है वो irregular form of the verbs. A verb whose variation of form doesn't follow the standard patterns in its inflection, its forms follows a different pattern, is known as irregular verbs. Its form doesn't follow the regular pattern, that's why it's called irregular verbs. इसकी forms regular verbs की form का pattern follow नहीं करती, जिसकी वजह से हम इनको irregular verbs कहते हैं. irregular verbs इसलिए कहती हैं क्योंकि जिस तरह कि हमने प्रीवियस टाइप में पढ़ा था कि रेगुलर verbs वो होते हैं जिसमें डी या ed की एडिशन करें और आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज रहती है, लेकिन ये ऐसी किसी भी चेंजिंग को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो इसलिए हमने इनका नाम irregular verbs रख दिया, क्योंकि ये रेगुलर verbs के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे. इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बेटा डिफरेंट होती है, बेसिक वर्ब या रूट वर्ब्स की से डिफरेंट होती है, इसलिए हम इनको irregular verbs कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ गो. फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकेंड फॉर्म इज वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन. फर्स्ट फॉर्म इज डू, सेकेंड फॉर्म इज डिड, थर्ड फॉर्म इज डन. तो हमने इन दो एग्जाम्पल्स में देखा कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसके स्पेलिंग्स और है, सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग ऑफ वर्ड और है, थर्ड फॉर्म के एग्जाम्पल सॉरी जो स्पेलिंग्स ऑफ वर्ब्स और है. इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये irregular verbs हैं, ये पैटर्न फॉलो रेगुलर का नहीं करते. इसमें हमें सिंपल कोई ख़ास पर्टिकुलर वर्ड्स लगा के या अल्फ़ाबेट्स लगा के हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पूरे का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है. तो इसलिए हमारे पास ये irregular forms of verbs होती हैं. begin, began, begun, do, did, done, give, gave, given, understand, understood, understood. These are all the example of irregular verbs. ठीक है बेटा. The last type of verb is auxiliary verbs, जिनको हम प्यार से helping verbs भी कहते हैं. An auxiliary verb is a verb used to add the functional or grammatical meaning to the clause in which it appears. It is used in the forming the tenses, moods, and voices of other verbs. It is also known as helping verbs. So basically बेटा auxiliary verbs हमारे पास वो verbs होते हैं जो कि support देते हैं main verb को. इनको हम auxiliaries भी कहते हैं, इनको हम helping verbs भी कहते हैं. जब हम अभी नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे, जब टेंस के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि auxiliary verbs कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और इनको किस तरीके से सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को किस तरीके से सपोर्ट करती है और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में. तो राइट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते कौन कौन से हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वो सपोर्टिव वर्ब्स होते हैं जो कि एक्चुअली सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्रामेटिकल बैलेंस इन द सेंटेंस, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम करेक्ट जगह पर करेक्ट ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करें. तो ये बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे होते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं इज, एम, आर, will, shall, has, have. These are all auxiliaries. ठीक है, ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू. द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट ही इज मेकिंग द असाइनमेंट. हमारे पास मेन वर्ब जो मेकिंग है, जो इज है एक्चुअली वो सपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, टेंस को बता रहा है.
is making the assignment. She was giving the presentation, इसमें हमारे पास was है. They have been studying, तो इसमें हमारे पास have been. The team will score better next time, तो इसमें हमारे पास will आ रहा है. I can speak English. Can is the auxiliaries in this tense. तो बेटा सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था auxiliary verbs होते क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं. जब रिव्यू में आपको बता रहा हूँ कि auxiliary verbs हमारे पास helping verbs कहलाते हैं और ये verbs के other verbs के साथ यूज होते हैं grammatical balance को maintain करने के लिए in the sentence. तो हमारे पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, फिर आईएनजी जाते हैं. सेम इज द केस परफेक्ट में हैज और हैव का यूज़ करते हैं ऑक्सिलरीज और थर्ड फॉर्म लगाते हैं. इन द पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं. फ्यूचर में विल और शेल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. और ये सारे विल, शेल, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर ऑल द नन्ना मुन्ना ऑक्सिलरीज इन द सेंटेंस. ठीक है बेटा. सो फॉर वी हैव डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, फिर उस एक्शन वर्ब्स के बाद ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद इनट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव के बाद फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट के बाद हमने इनफाइनाइट वर्ब्स किए, फिर रेगुलर वर्ब्स किए, फिर इरेगुलर वर्ब्स किए और लास्ट में हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स किए. अब मैं क्विक एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन बताता जाऊँगा ताकि आपको एक दफ़ा सारा जो एक समअप जो है वो आपको हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए और आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए. फर्स्ट टाइप की हमने जो डिस्कस की थी वो था एक्शन वर्ब का. एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन शो करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे पास एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं. इनकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने जॉन प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड इज द एक्शन वर्ब. सेकंड टाइप हमारे पास थी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, टू कंप्लीट इट्स सेंस. तो ऐसे वर्ब्स जिनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी द कैट ब्रोक द मिरर, तो इसमें ब्रोक इटसेल्फ कोई मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा जब तक हम इसके साथ ऑब्जेक्ट का एडिशन नहीं करें. तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग राइट नाउ, अगर मैं राइट नाउ नहीं भी लगाता तो स्टडिंग तक समझ में आ रहा है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है. फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच हैव अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट और द नाउन एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द नाउन. फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट और नाउन के साथ उनका काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप होता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंज रहते हैं. जिस तरीके से नाउन हमारे पास चेंज होता है उसी तरीके से सब्जेक्ट चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास वर्ब्स चेंज होता है. फॉर एग्जांपल डॉग बार्क्स इन द पार्क. अगर मैं डॉग सिंगुलर है तो आगे से बार्क्स निकलेगा. अगर मैं इसको प्लूरल कर देता हूँ डॉग्स, फिर बार्क हो जाएगा. तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है फाइनाइट वर्ब्स. आफ्टर फाइनाइट वर्ब्स बेटा नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स की. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वी कैन नॉट मेक एन आइडिया बाय लुकिंग ऑन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स टू टेल विच टाइप ऑफ टेंस एक्चुअली इट बिलोंग्स टू. ये कौन से टेंस से बिलोंग कर रहे हैं ये हम इनको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते. तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे. इसकी एग्जाम्पल होगी वी लाइक कैंपिंग इन द वुड्स. तो इन दिस सेंटेंस कैंपिंग इज द infinite verb in this sentence. Next हमारे पास regular verbs है. Regular verbs are those type of verbs whose second or third forms follow the same pattern of addition, adding d or ed. और जो हमारे पास d और ed के एडिशन के साथ verbs पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं वो हमारे पास regular forms होती हैं. इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है बेटा उनमें सिंपल हम d या ed के एडिशन करते हैं और ये हमारे पास रेगुलर फॉर्म की verbs कहलाते हैं. Irregular verbs, irregular verbs जो हैं verbs whose variation of form does not follow the standard pattern in its inflection. इसकी जो रेगुलर जो पैटर्न को ये फॉलो नहीं करते, डी और ईडी के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके अल्फ़ाबेट्स, इनके स्पेलिंग्स और ये वर्ड्स डिफरेंट होते हैं बेसिक रूट वर्ब से. इसलिए हम इनको इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. इनकी एग्जांपल होती है डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, बिगन, बिगैन, बिगन. तो ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स. और लास्ट हमने डिस्कस की थी ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर द
can say that the helping verbs which actually help the verbs, helping verbs mean help कर रहा है, verb की help कर रहा है, ये verb की help करते हैं in order to maintain the balance and the sentence, grammatical balance को maintain करने के sentence को करते हैं. So these are the auxiliaries. For example, he is making the assignment, they have been studying, the team will score better in the future. So these are will हो गया, इसमें have been हो गया, और he is studying में is हो गया. ये हमारे पास सारे is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, or the auxiliaries in English grammar. So this is all about beta. Today we have discussed types of the verbs और हमने इसकी examples भी discuss की. I hope कि आपको सब कुछ हद तक समझ आ गई होगी. और in the next lecture we will meet again with a new topic. Till then, take a very good care of yourself. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.